Hello student, welcome back in our online class. Dear student, I hope you all are well at your home and you all are doing your study very well. Dear student, today's our topic is my elder brother in English class 5th part 1. Okay, dear student, first off I want to describe a two character related to this chapter. First off Munna and second is Bhaiya. Okay, this chapter is conversation between Munna and Bhaiya. What types of conversation, what he discussed about together. Let's start. Dear student, this is your topic, my elder brother, page number 64. My elder brother, that's mean mere bade bhai. This is a story by Premchand titled Bade Bhai Sahab. The story shows that experience is as important as hard work. Dear student, let's read the book. First up, scene first. A hostel room, two brothers, age 9 and 14 years. Sitting at a study table, the elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of birds and animals. Here start the conversation between Bhaiya and Munna. Let's start. Bhaiya, what are you doing, Munna? Then after Munna reply, Munna, I am drawing. Bhaiya, when will you study? Where were you in the morning? Munna, turning pale. I was playing. Bhaiya, how can you sit with a book for hours together? Bhaiya, that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will be stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Munna, Bhaiya, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times of beautiful letters. Bhaiya, you know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? Munna, oh Bhaiya, there is a big mela in the village. Today, should we go? Bhaiya, have you ever seen me going to a fair of going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same classes all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. And listening this, Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds vah vah, bha bha, who are heard. Okay student, let's translate this chapter, My Elder Brother. This is a story by Premchand titled बड़े भाई साहब. यहाँ पर जो ये स्टोरी है, ये प्रेमचंद जी का जो टाइटल है हिंदी में बड़े भाई साहब, वहाँ से अडप्ट किया गया है. This story shows that experience is important as hard work. ठीक है, कहा जा रहा है इसमें कि जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो क्या है अनुभव है, वो हमारे हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत काम आता है. यानी हार्ड वर्क के साथ साथ आपको
क्या भी आवश्यक होता है, एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो पहला सीन है, ठीक है, ये जो सीन है जो पहला वो है अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा है, ठीक है। 2 ब्रदर्स, 2 भाई है वहाँ पर। एज, जो छोटा वाला है उसकी एज 9 साल है और जो बड़ा वाला भाई है उसकी एज 14 साल है। सिटिंग एज अ स्टडी टेबल, और दोनों भाई अपनी स्टडी टेबल यानी जहाँ पर वो किताबें पढ़ते हैं वहाँ पर वो दोनों बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक, और जो बड़े भाई हैं, जो हमारा कैरेक्टर मैंने कहा जो यहाँ पे जो दूसरा है कैरेक्टर भैया, वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर किताब को पढ़ रहे हैं यानी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड द यंग वन, ठीक है, रीडिंग अ बुक, एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर। पर जो सेकंड कैरेक्टर हमारा यहाँ पर जो है मुन्ना, वो क्या कर रहा है, छोटा भाई है 9 साल का, जो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है पिक्चर को, बर्ड्स की और एनिमल्स की जो ड्राइंग है उसको क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है दोनों भाइयों के बीच, ठीक है। लेट्स सी। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं अपने छोटे भाई से कि मुन्ना, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, कि आप क्या कर रहे हो मुन्ना। तो मुन्ना इस बात पर रिप्लाई करता है आई एम ड्राइंग, कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, अच्छा वो ये बताओ कि जब मैं सुबह को पढ़ रहा था, कि मुन्ना ये बताओ कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ रहा था तो आप उस टाइम कहाँ पर थे, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं बड़े भाई अपने छोटे भाई से। तो मुन्ना इस पर टर्निंग पैल यानी बात को पलटने की कोशिश करते हैं। होता है ना कि जब हमसे कोई पूछता है कुछ चीज़ हम नहीं बताना चाह रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, बात को पलटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मुन्ना भी यहाँ पर बात को पलटने की कोशिश करते हैं। टर्निंग पैल, आई वॉज प्लेइंग भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर हावर्स टुगेदर, कि भैया कि मैं खेल रहा था और आप कैसे, अब वो बात को पलट रहे हैं कि भैया आप मुझे बताओ ना, आप इतने घंटों तक कैसे किताबों के साथ बैठ जाते हो, कि देखता हूँ मैं आप बैठे हुए हैं, पढ़ ही रहे हैं, आप कैसे कर पाते हो, मैं तो नहीं कर पाता, ठीक है। मुन्ना ये सब कह रहे हैं। तो भैया कह रहे हैं इस बात पर रिप्लाई, भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू माई फाउंडेशन इन द एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, कि वो इस बात से है, अपने भाई को कह रहे हैं मुन्ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाउंडेशन हो, फाउंडेशन मीन से बेसिक यानी तल, यानी जो बेसिक ज्ञान होता है, मूलभूत जो ज्ञान होता है वो कैसा हो, बिल्कुल स्ट्रांग हो। फाउंडेशन का मतलब होता है, आपने देखा बिल्डिंग के लिए भी हम लोग क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, यानी एक चौड़ा समतल भाग होता है जिसको अच्छी तरह से फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना यानी मजबूत करना। तो वो भैया भी चाहते हैं कि मैं भी अपनी एजुकेशन में अपनी जो फाउंडेशन है उसको क्या करूं, खूब स्ट्रांग करूं, ठीक है। इसलिए भैया कह रहे हैं कि ठीक है, क्या कह रहे हैं, That's because I want my foundation in education to very strong. If the base is strong, then the building will be stand firmly. और इस बात को कहना है कि देखो मुन्ना, कि अगर क्या होगा, बेस जो होगा यानी जो फाउंडेशन होगी वो मजबूत होगी तो उसके ऊपर हम कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लें वो क्या हो जाएगी, अच्छे से खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही वो भी कहते हैं कि मैं भी अपने जो एजुकेशन की फाउंडेशन है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बचपन में सीखने वाली चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उनको स्ट्रांग करना चाहता हूं ताकि जो फ्यूचर में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम एक अच्छी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए क्या करते हैं, एक अच्छी बढ़िया सी फाउंडेशन बनाते हैं ताकि हम उसके ऊपर कितना मंजिला भी क्या कर दें, फिर बिल्डिंग को चढ़ा दें, वो क्या नहीं होगी, गिरेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए भैया कह रहे हैं, ठीक, समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कभी कभी ये 2 साल 1 साल भी ले लेता है। आपने देखा हो बिल्डिंग को अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए कभी कभी 1 साल 2 साल लग जाते हैं एक अच्छी फाउंडेशन बनाने में। तो ऐसे भैया कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है उस बेसिक चीज़ों को सीखने में। तो मुन्ना कहते हैं भैया यू आर 5 years older than I am, कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, ठीक है, एंड 3 classes ahead, और मेरे से 3 क्लास बड़े हैं आप, यानी वो कह रहे हैं कि भैया आप मेरे से क्या है 5 साल बड़े हैं और सिर्फ 3 क्लास मुझसे ज़्यादा हायर है, यानी 3 क्लास सीनियर हैं आप मुझसे, ठीक है। यानी अगर भैया अगर 5 में है तो वो भैया अगर 8वीं में है तो जो छोटा भाई है वो किस में है, 5 में है, 3 क्लास ज़्यादा ऊपर है वो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, ठीक है, क्लासेस अहेड ऑफ मी, आई वंडर व्हाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times,
मैं इस बात को मुन्ना कह रहे हैं कि भैया मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा क्या हूं, आश्चर्यचकित हूं कि आप एक ही वर्ड को 20 टाइम कैसे लिख लेते हो। यानी एक ही वर्ड को आप क्या कर रहे हो, 20-20 बार लिख रहे हो। ठीक है, वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स। और एक एक वाक्य को आप 20-20 बार लिखे जा रहे हो, एक एक वर्ड को आप 20-20 बार लिखते हो और एक पोएम को कई बार लिखते हो। मुझे आश्चर्यचकित है आप ऐसा क्यों करते हो। यानी अब मुन्ना और भैया से पूछ रहे हैं कि भैया मैं जब देखता हूं कि आप लगे एक ही वर्ड को 20-20 बार लिख रहे हैं, एक ही सेंटेंस को 20-20 बार लिख रहे हैं और एक ही पोएम को कई बार लिखे जा रहे हो। ठीक है, तो इस बात पर ठीक है, तो इस बात पर भैया कहते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। तुम्हें पता है मुन्ना, जो इंग्लिश सीखना है वो बच्चों का खेल नहीं है। यानी इंग्लिश सीखना, अब वो कह रहे हैं, मुन्ना कह रहे हैं अपने भैया से, जब उन्होंने पूछा कि आप एक ही वर्ड को इतना सारी बार क्यों लिखते हो, तो भैया कह रहे हैं कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको सीखना क्या है, बच्चों का खेल नहीं। यानी इंग्लिश पढ़ने और सीखने के लिए आपको क्या करता है, डेडिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या देना पड़ेगा, डेडिकेशन, अपना समय देना पड़ेगा उसको, लगातार उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए भैया कह रहे हैं कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या हो रहा है, ठीक है, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से डेली आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भैया बता रहे हैं मुन्ना को कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो प्रॉपर आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, उसके लिए डेली आपको समय देना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, order to learn the subject to speak or write English properly, ठीक है, tremendous effort to required, but the moment you get a chance you run to the field। अब भैया कह रहे हैं, ठीक है, अगर हमें इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से ट्रिमेंडस एफर्ट देना पड़ेगा, यानी अच्छे तरीके से सीखनी है, बोलनी है और लिखनी है, तो कह रहे हैं भैया ट्रिमेंडस एफर्ट देना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पर होता क्या है, अब वो कह रहे हैं पर तुम तो हमेशा क्या जाते हो, मैदान में चले जाते हो हमेशा खेलने के लिए, और जबकि आप प्रैक्टिस या हार्डवर्क नहीं करते हो। ठीक है, मार्बल्स, ठीक है, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends। और मुन्ना तुम क्या करते हो, खेतों में चले जाते हो, भाग जाते हो और वहां पे कंचे खेलते हो। मार्बल्स मीन से कंचे, वहां पे कंचे खेलते हो और पतंगे उड़ाते, कागज की पतंगे उड़ाते रहते हो और इधर उधर अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो। ठीक है, अब वो उनको कह रहे हैं, ठीक है, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो कि चुपचाप आके अपनी, ठीक है, जितना समय तुम वहां पर बर्बाद करते हो, तुम क्यों ना ऐसा करो कि वहां वो सब छोड़ के क्या करो, थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई कर लिया करो। इस बात पर मुन्ना कहते हैं, देखो बात को बदलते हैं मुन्ना, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। अब वो कह रहे हैं, ठीक है, मुन्ना कह रहा है कि भैया आपको पता है आज गांव में क्या है, एक बड़ा सा मेला होना है, फेयर मीन से मेला, ठीक है, एक बड़ा सा मेला लगने वाला है गांव में, तो क्या आज हम लोग जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, टुडे शुड वी गो, क्या आज हम लोग वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कह रहा है, मुन्ना कह रहा है भैया से कि भैया आज गांव में एक बड़ा सा मेला लगने वाला है, तो क्या हम लोग वहां पर जा रहे हैं। तो भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच द क्रिकेट, क्या और हॉकी। तो कह रहे, अब भैया कह रहे हैं कि मुन्ना ये बताओ, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते देखा, या कभी क्रिकेट मैच देखने या हॉकी मैच देखने तुमने मुझे कभी जाते हुए देखा है। ठीक है, आई डोंट गो टू नियर देम, आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक। ठीक है, वो कहते हैं कि भैया कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, बिल्कुल भी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, काय में, मेला देखना या क्रिकेट मैच देख लेना या हॉकी मैच देख लेना, मैं इन सब में क्या हूं, इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा फोकस क्या है, मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं तुम्हें क्या राय दूंगा, आई प्रेफर टू स्टडिंग अ बुक, मैं तुम्हें राय दूंगा कि क्या करो, बुक पढ़ो, मेले की तरफ ध्यान मत दो। जो गांव में मेला होने वाला है, तूने कभी मुझे देखा है वहां पर जाते हुए। ठीक है, और कह रहे हैं कि क्या करो, बुक को पढ़ाई करो, ध्यान दो। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन
2 years। मैं नहीं चाहता हूं कि क्या करो तुम वो एक ही क्लास को क्या करो बार बार रिपीटिंग। मैं क्या नहीं चाहता हूं कि मैं एक ही क्लास को क्या करूं दोबारा पढूं, यानी फेल हूं। कहने का मतलब है भैया का कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मैं क्या हूं, फेल हो जाऊं। ठीक है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक ही क्लास में पढ़ते रहो, यानी क्या तुम चाहते हो कि तुम फेल हो, वो भैया कह रहे हैं। ठीक है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। क्या तुम अपने जीवन भर में एक ही क्लास में रहना चाहते हो? डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसे ही अपना समय बर्बाद करते रहोगे कंचे खेलने में या कागज की पतंग उड़ाने में, दोस्तों के साथ इधर उधर बैठने में, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? अब भैया कह रहे हैं मुन्ने को कि अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो क्या नहीं होगे, पास नहीं हो पाओगे, यानी तुम अपनी अगली कक्षा में नहीं जा पाओगे। ठीक है। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नेड मनी। और तुम क्या करो, साधारण तरीके से पिताजी का जो हार्ड अर्नेड मनी है, कठिन परिश्रम से कमाया हुआ जो पैसा है, उसको क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो सिंपली मुन्ना को क्या किया जा रहा है, समझा रहे हैं। ठीक है बड़े भाई, कि जो ये गेम खेल में तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको अपनी फाउंडेशन अच्छी बनानी पड़ेगी और डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये बात सुन के मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग सोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स। और इस बात को सुन के जब भैया ने बिल्कुल मना कर दिया मेले में जाने के लिए, तो मुन्ना क्या कर देता है, रोना शुरू कर देता है। कैसे साउंड के साथ, वाह वाह हूँ के साउंड के साथ होता है, ऐसे साउंड के साथ वो क्या करने लग जाता है, रोना शुरू कर देता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे टू गोइंग बैक होम। भैया मुझे अब ऐसा लग रहा है, मुन्ना कह रहे हैं कि भैया मुझे घर की बहुत याद आ रही है और मुझे लगता है मुझे घर भाग जाना, वापस भाग जाना चाहिए। अब मुन्ने को घर की याद आ रही कि ये भैया तो मुझे कहीं घूमने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे और हमेशा पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं, उसको घर की याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि ठीक है भैया मैं घर वापस भाग जाऊंगा। भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, घर को वापस आऊँ। तो भैया कहते हैं नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन द नाइस सिंपल लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू, अ फॉलो, गेट अप एट डाउन। ठीक है। और भैया कहते हैं अरे चुप हो जा, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए क्या बना देता हूँ, एक टाइम टेबल बनाता हूँ, यानी शेड्यूल बना लेता हूँ कि कब आपको पढ़ना है, कब उठना है, कब जागना है, कब खाना है, कब सोना है। तो एक ऐसा एक टाइम टेबल मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है। और तुम क्या करना, उस टाइम टेबल के हिसाब से टाइम टेबल को फॉलो करते जाना। तो बेटा इस पार्ट में यहाँ पर हम इतना ही सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम सीखेंगे कि आगे क्या कन्वर्सेशन होता है बिटवीन अ ब्रदर एंड मुन्ना। तो और क्या कंडीशंस आती है आगे, क्या मुन्ना वाकई घर भाग जाता है या वो स्ट्रिक्टली भैया के द्वारा जो बनाया गया टाइम टेबल है उसको फॉलो करता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना है। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।